Okay, so we'll wait for a few minutes or we'll start, Smita ji. 2 मिनट वेट करो, सबको पहले म्यूट कर दो एक बार, और भी वो म्यूट बटन को कर दो। Okay. Hello, Sunita ji. Hi. All the best, Smita ji. All the best, Vandana ji. Thank you. एक्चुअली सभी अभी म्यूट पे है, तो जिनको भी कुछ पूछना है तो जस्ट रेज योर हैंड. ओके, should we start or okay. Namaste everyone, good evening, welcome everyone. आप सभी का इस वर्कशॉप में स्वागत है. So now let me introduce myself. I'm Vandana Sharma. I'm yoga teacher and practitioner from Aram Yoga Institute. And before we start further, we all first do one prayer. So sit in comfortable position. आप जहाँ भी बैठे हो, just comfortable position में बैठिए. Either in Ardha Padmasan, Padmasan, Sukhasana, hands in Jnana Mudra or in Namaste. Okay. Remove your specs. Close your eyes. Slowly inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 3 Omkar followed with prayer. So deep inhalation. Oh. Inhale. Oh. Inhale. Oh. Om Bhurvasvaha Tassavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly rub your palm. Cup your eyes. Take your hands down and gently open your eyes. Thank you, everyone. So again, once more, good evening. One more time. So now a little bit about our Arambha Yoga Institute. So Arambha Yoga Institute is accredited by Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India. It is an ISO certified institute for the international standard that specify requirement for a quality management system, and it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work to enlighten the world, especially your aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession, and introduce them to the real essence of yoga and benefit of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting in improved life balance of an individual, hence turning up a better society. And I'm really proud and glad that I'm part of this Aram Yoga Institute. So anyone who really want to start their yoga journey, this is the best platform. Aram Yoga Institute is the best platform. So now this is the second week of our workshop. And today we have our best friend actually, Smita Kar.
and little bit about Smita ji. Okay, so Smita ji, she is from Navi Mumbai and she has done her bachelor degree in arts. Her yoga qualification, she has completed her YCD level 2 from Aram Yoga Institute. Also completed PPC on PPYG, that is prenatal, postnatal, and Garbha Sanskar from Aram Yoga Institute. And now she is doing level 3 and 4 from Aram Institute. So her journey towards Yoga Master is in progress. I know Smita ji since 2 years and her passion about yoga is really incredible. She is very good yoga teacher as well as a practitioner. So please welcome Smita ji. And before I hand over to Smita ji, there are few reminders actually. So this is online class, right? So in case suppose power, electricity cut or some technical issue comes, so just cooperate for to come back our teacher, okay? And second thing, there is a feedback form which we are sharing on chat box. So try to fill that feedback form. So wherever you get like last 5 to 10 minutes are there. So otherwise in between also in chat box, you will get that feedback form. So please feel free to fill that feedback form, okay? And now I will keep everyone on mute actually. So without any disturbance, class will go on. In case you want any doubt or any queries are there, last 5 minutes are there. So you can ask your doubts in that time, okay? Or in between, if you want to ask something, you just raise your hands, right? So I'll make Smita ji now host. Thank you, Vandana ji, for the All the beautiful best. introduction. नमस्ते एवरीवन, आप सबको मैं स्मिता ये 5 डेज का जो वर्कशॉप योगा फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। Am I audible ना वंदना जी? Yes, yes, yes. ओके एंड मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे आरम योगा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रोफेसर सुषमा मैम, रीता मैम, बालकृष्ण सर, संजीव शाह फॉर देयर गाइडेंस। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर भी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आज से 5 दिनों तक आपका और हमारा साथ रहेगा, तो मुझे विश्वास है इस सेशन के एंड तक, अंत तक हम एक दूसरे से कुछ नॉलेज लेके जाएंगे, ठीक है? तो आज एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं थोड़ा ना 1 मिनट में मेरा स्क्रीन को शेयर करती हूँ। वंदना जी थोड़ा मुझे बताना मेरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? Yes, yes. Yeah, it is there. Yes. That gray, वो yes. है, आ रहा है क्या वो वाला? Yes, 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 yes. It is there. Now it's gone. अच्छा, ओके, Now it's okay. Perfect. अभी ठीक है? Yes, yes, perfect. ओके, तो आप मुझे देख पा रही हो ना वंदना जी? Yes, yes, yes. आज से अगले 4 दिन जो है टोटल 5 डेज आपका और हमारा साथ रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है योगा फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी। हम सब जानते हैं एक वोमेन जो है इस धरती पर ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। वोमेन आर स्पेशल, है ना? मुझे Yes. आप सब एग्री करोगे। एक महिला को अपने जीवन में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है और आप सबको पता है और आप लोग भी एग्री करोगे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती है, कभी एक कॉमन वुमन बनकर तो कभी एक सुपर वुमन बनकर। तो इसीलिए हम सबको उसका केयर करना, उसका हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जमाना था जब
एक औरत को अपने अंदर होने वाले कोई भी डिजीज है, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता था, किसी के सामने वो खुल के बात नहीं कर पाती थी। लेकिन तब का जो जमाना था और आज का समय देखिए बहुत डिफरेंस है। आजकल वुमेन हेल्थ के ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार, फ्रेंड सर्कल के बीच में और स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे ओपन डिस्कशन हो रहा है। इससे पता चलता है कि हम लोग आजकल के वुमेन कितना अवेयर हो गए हैं। हम लोग वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत तो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अवेयर हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ और आप और हम मिलकर और भी कुछ लोगों को अवेयर कराएंगे। ठीक है ना? करेंगे सबको वुमेन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एक वुमेन का हेल्थ सही रहेगा तो देखो पूरा परिवार ठीक रहेगा, पूरा सोसाइटी ठीक रहेगा। तो ये एक चेन जैसा रहता है। तो वुमेन हेल्थ का विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक बेबी जब पैदा होती है, उसके शरीर में ना सारे जो फिजियोलॉजिकल हमारा ऑर्गन्स होता है, ये सारे रहता है। उसके साथ साथ आपका देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी रहती है, बट वो डेवलप होता है जब उसका प्यूबर्टी आता है। प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी, मतलब जब से उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, तो वो फंक्शन एक्टिव हो जाता है। और ये जो प्यूबर्टी और मैच्योरिटी का टाइम से लेके जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एंड मेंस्ट्रुएशन जब एंड होता है, उसको मेनोपॉज बोला जाता है। वो जो पीरियड होता है जो रिप्रोडक्टिव एज होता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज जो होता है एक औरत के लिए, एक महिला के लिए, उस समय उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत डिफिकल्टीज भी उनको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी आते हैं। तो बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सबको होता है, किसी किसी को होता है। तो जब कोई जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी उस प्रकार का एक वन ऑफ द ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अभी हम लोग पीसीओएस पीसीओडी क्या है जानने से पहले हम लोग पहले देखेंगे हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर हम लोग पीसीओएस एंड पीसीओडी के ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। वुमेन का हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें हमारा यूटेरस रहता है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और ओवारीज रहते हैं। बाकी तो आपका सबिक्स वाजिना ये तो होता है, बट ये जो है आपका ओवारीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूटेरस, उसका काम, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे पीसीओएस एंड पीसीओडी, ये जो दो वर्ड है ना वो वेरी कंफ्यूजिंग होता है। बहुत लोग उसी में बहुत कंफ्यूजन माने फील करते हैं कि कोई कोई सोचता है ये दोनों सेम है। तो हम लोग पहले जानेंगे पीसीओएस एंड पीसीओडी क्या है। पी मतलब जैसे होता है पॉली मतलब मोर, ज्यादा। सी में आता है, वो पी देखो दोनों में है। सी में होता है सिस्टिक, जो सिस्ट मतलब जैसे गांठ होता है, तो दोनों में वो सिस्ट होता है। ओ होता है ओवरीज। देखो ओवरीज में क्या है, देखो दोनों ओवरीज के साथ एसोसिएटेड है, तो एक सिंड्रोम है, एक डिजीज है। तो ये दोनों है ओवरी रिलेटेड। तो ओवरी रिलेटेड होता है। ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरी काम क्या करता है ना, ओवरी एवरी मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करता है, जो कि ओवुलेशन का काम करता है। और उसका एक काम ये है, वो हमारे जो वुमेन फीमेल जो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसको भी रिलीज करता है। जो और वो जो सीक्रेट करता है वो हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ये जो पीसीओएस और पीसीओडी, तो हमको अभी ये समझना है ये दोनों है ओवरी रिलेटेड एंड हार्मोन रिलेटेड है। तो जब सारे सिस्टम सही में काम करता है तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन वही है ओवारी और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अगर ओवारी और हमारे जो जब एक जो मैच्योर एक दो रिलीज करता है और एक हार्मोन है, ये दोनों में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है
तो फिर हमारा उस सिस्टम में गड़बड़ चालू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सिस्टम क्या है वो तो देख लिए, उसमें क्या क्या ऑर्गन आता है वो तो देखा। फिर हम देखते हैं ये क्या है ये पीसीओएस एंड पीसीओसी क्या है हमारा। PCOS and PCOD is a condition that affects the woman's hormone level. तो ये जो हार्मोन है अगर सही चलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल सही से ठीक मात्रा से वो रिलीज करता है तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसी में कुछ वो हार्मोन लेवल में डिस्टर्बेंस होता है तो सारे गड़बड़ी स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन क्या ना हमारे बॉडी में म्यूट कर दीजिए, नाही विराट असं झालं होतं की मी काय झालं एकदा 31st ची पार्टी होती ना, नाही ते मागच्या वर्षीची, त्या दिवशी रात्री नाचली लताजी, excuse me, लता आम्ही पण अशी चालायची पुरीला नंतर आठवलं म्हणले लता अनामिका, उद्याच can you उद्याच mute मारत होते yourself? आणि कुठे चालायचं वंदना जी आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर कर दीजिए। दीजिए। वंदना जी आप म्यूट कर दीजिए। डन ना? हाँ यस, हमारे जैसे हार्मोन का रोल बहुत एसेंशियल रहता है बॉडी में। तो थोड़ा सा अगर उसमें इम्बैलेंस होता है, अगर टू मच थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है या थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट थ्रू आउट द बॉडी वो हो जाता है। तो यही हुआ पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो अभी हम लोग देखते हैं ये क्या करता है। इट इज अ प्रॉब्लम विद हार्मोन्स दैट अफेक्ट्स वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज होता है मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, उसी समय वो अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स वुमेन्स ओवरीज, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अभी हमने डिस्कशन किया। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे ये पीसीओएस एंड पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। पीसीओडी ना वेरी कॉमन, एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल, वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। आजकल आप देखोगे ना बहुत छोटे छोटे यंग लड़कियों को अभी पीसीओडी का उनका प्रॉब्लम है। 15-16 साल की लड़कियां है उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे आजकल मैंने हर एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत कुछ चेंजेस है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जंक फूड खाना, बहुत कुछ आजकल पहले के जमाने से लेके अभी तक उस दोनों को आप कंपेयर करोगे आजकल बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, इसीलिए आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को पीसीओडी भी हो रहा है। तो पीसीओडी एक कॉमन कंडीशन है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन पीसीओएस जो है ना एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। पीसीओडी में क्या होता है, तो ओवरी क्या करता है ना, ओवरी क्या करता है बड़ी संख्या में इमैच्योर और पार्शियली मैच्योर एग को प्रोड्यूस करते हैं, और ओवर द टाइम क्या होता है ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण ओवरी हमारा भी एनलार्ज होता है, ओवरी एनलार्ज हो जाता है, और उसके बाद क्या करता है ना लार्ज अमाउंट का मेल हार्मोन रिलीज करता है। जैसे मैंने पहले बताया हमारा जो फीमेल ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ वेरी लो अमाउंट का मेल हार्मोन रहता है हमारे शरीर में, लेकिन जब हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसी में वो मेल हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है तो पीसीओएस और पीसीओडी का आपको सिम्टम्स दिखाई देता है। जब पीसीओडी में वही हुआ इमैच्योर और पार्शियली मैच्योर एग को वो रिलीज करता है, और वो ओवर द टाइम से वो क्या होता है सिस्ट बन जाता है ओवरी में, और उसके कारण हमारा मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। उसमें हमारा देखो ज्यादा फिर से गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, पीरियड प्रॉब्लम होता है, वेट गेन, मैंने बहुत जल्दी आपको वेट गेन हो जाता है। आप ऐसे भी सोचोगे कि हम लोग ज्यादा तो नहीं खा रहे, हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, ये तो एक मेजर चीज हो जाता है। बट पीसीओएस क्या है ना, पीसीओएस एक एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, इसमें भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओवरी से क्या होता है ना ज्यादा मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। अगर मेल हार्मोन ज्यादा जब आ जाता है तो एग रिलीज करना बंद कर देता है ना, तो ओवरी क्या करता है ना एग को रिलीज करना बंद कर देता है, तो जिसके कारण हमारा ओवुलेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए सेम प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इनफर्टिलिटी वेट गेन होता है, इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है, ये सब हो जाता है। ओवुलेशन जब नहीं होता है तो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है,
इनफर्टिलिटी, एक महिला के लिए इनफर्टिलिटी वो एक बहुत बड़ा, वो बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब मैंने ये केस हो जाता है उनका, कि उनका वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ये सोच के वो पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर कंसीव भी कर लेते हैं ना, मिसकैरेज का बहुत चांसेस रहता है। तो ये पीसीओएस में होता है। लेकिन पीसीओडी में आप मैंने कोई भी कंसीव कर सकता है, क्योंकि देखो ये कभी कभी क्या करता है ना, थोड़ा कभी इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एक भी करता है, तो कभी कभी अगर वो ओव्यूलेशन हो गया तो आप थोड़ा सा हेल्प से आप पीसीओडी में कोई एक प्रेग्नेंट हो सकता है। पीसीओएस का जो अभी कॉज है, तो उसका अभी तक उसका कुछ भी अननोन है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ पीसीओएस इज अननोन। लेकिन इसे आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है, वात और कफ का इम्बैलेंस में भी ये होता है। लेकिन कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है। मेल हार्मोन आपका जैसे मेल हार्मोन जब ज्यादा जब रिलीज करता है वो तो प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का समस्या भी एक कारण हो सकता है पीसीओएस में। इंसुलिन लेवल जब इंक्रीज होने के कारण ओवरीज भी मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है। मेल हार्मोन ज्यादा जब होता है तो ओवुलेशन होता नहीं है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अगर हम लोग नहीं करते हैं, अलॉन्ग विद वेट लॉस वेट मैनेजमेंट भी करना चाहिए, तो आगे जाके हमको टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन पीसीओडी में इतना सारा सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसमें है आपका जो इसका मेन कारण पीसीओडी का है लाइफस्टाइल, आपका गलत खाना पीना, आपका स्ट्रेस, आजकल जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, स्ट्रेस, एंड आपका जैसे एक्सरसाइज ना करना, ये सब पीसीओडी का कारण हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे अगर हमको ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाकी जो इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, अगर ये अगर को कोई प्रॉब्लम आती है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हमें इसमें क्या क्या सिम्टम है तो हमको पता चलेगा कि ये पीसीओएस है, पीसीओडी है। दोनों में ना सिम्टम्स बहुत सिमिलर रहता है। हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स तो होता है, जिसके कारण ये हमको ये प्रॉब्लम आती है। इसके कारण क्या हो जाता है, सिस्ट ओवारी में सिस्ट आता है, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम आती है। स्किन डिस्कलरेशन होता है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, वेट गेन, एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, हेयर फॉल, बाल्डनेस सिमिलर टू मेल पैटर्न बाल्डनेस, जैसे यहाँ पे ये पोर्शन में बाल्डनेस होता है, मिसकैरेज होता है, वाटर रिटेंशन भी होता है, हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इम्बैलेंस, ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। ये जब सिम्टम्स आते हैं, हम लोग और थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। जब हमको ओवुलेटरी डिस्फंक्शन आता है, ओवुलेटरी डिस्फंक्शन मतलब हमारा अगर एग नहीं आया, मेल हार्मोन ज्यादा हम लोग जो इमेच्योर एग रिलीज किया, तो उसमें हमारा ओवुलेशन का प्रॉब्लम आता है। तो अगर ये आता है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आपको बहुत सारे मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज को फेस करना पड़ता है, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज में जैसे डिस्मेनोरिया एक होता है जो कि पेनफुल पीरियड होता है, पीरियड के समय बहुत क्राम्प्स आता है। आमिनोरिया जो होता है, आमिनोरिया जो कि है एब्सेंस ऑफ पीरियड्स आता है, फिर चला जाता है, धीरे धीरे बंद भी हो जाता है, नहीं आता है, नहीं होता है एब्सेंस ऑफ पीरियड। और जो मेनोरेजिया है, जैसे वो इसमें हेवी ब्लीडिंग होता है, ये जैसे वो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस में ये जो मेनोरेजिया का केस, ये आपको फेस करना, जिनको पीसीओएस है, ये एक लक्षण उनमें देखने को मिलता है जब ओवुलेटरी डिस्फंक्शन होता है। जब हमको एंड्रोजन मेल हार्मोन एक्सेस होता है, तो उसमें क्या आता है, हिर्सुटिज्म जो है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हेयर ग्रोथ होता है ना, हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये सब हो जाता है।
देन एक्ने होता है, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, ये सब आ जाता है। बाल्डनेस आता है, जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये सब हो जाता है। तो ये जब हमारा जब एंड्रोजन एक्सेस होता है, जब सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन। अब मतलब किसी किसी को क्या होता है ना, स्किन आप देखोगे अलग अलग कलर दिखता है। बैक, अपर बैक में, किसी का नेक के पीछे यहाँ पे होता है, आर्मपिट में हो जाता है, थाई के इनर थाई पे, सब डार्क कलर, डार्क पैचेस, ये सब देखने को मिलता है। एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी तो पक्का मैंने बहुत बड़ा रीजन सिम्टम्स पीसीओएस एंड पीसीओडी के लिए। ये हम अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, बहुत डिटेल्स में नहीं जाते हैं, कोई भी मेडिकल टर्म हम यूज नहीं किए। आप लोगों को बहुत सिंपल वर्ड से मैंने समझा था, मैं जितना समझी थी आप लोगों को समझाई। अभी मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं क्यों ये टॉपिक लिया, मैं इसीलिए ये टॉपिक को चुना क्योंकि ये जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो उसके साथ में बहुत लंबा मैंने 15 इयर्स मैंने उसके साथ मैंने बिताया बहुत। तो मुझे पता है वो जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है कैसे होता है, एंड जो ओवेरियन सिस्ट होता है उसका कैसे प्रॉब्लम क्या है, एंड जैसे यूटेरियन एंडोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम क्या है, ये सारे मैंने खेला है। 15 साल 15 इयर्स मैंने उसके साथ रहा। उसके साथ मेरे को इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आई थी। ये सब होने के बाद क्या हुआ ना, मुझे तब तो इतना कुछ मुझे पता नहीं था मेरा पीसीओएस है या पीसीओडी है। लेकिन जब बहुत कुछ प्रॉब्लम आई, लास्ट को ये एक सोल्यूशन था सर्जरी, जो कि मुझे पूरा सर्जरी करके पूरा ये सिस्टम अभी मेरा नहीं है। मेरा मतलब ये पूरा सिस्टम को पूरा ओपन सर्जरी करके, एब्डोमिनल सर्जरी करके, ना मेरा यूटेरस है ना मेरा दोनों भी ओवरीज नहीं है, ये सिस्टम को पूरा निकाला गया है मेरा। ये भी मेरा सर्जरी होना बहुत कम एज में मेरा मेनोपॉज हो गया था, सर्जिकल मेनोपॉज, और वेरी यंग एज में। और वो ये सर्जरी अभी 17 इयर्स हो गया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक सिस्टम मेरे पास नहीं है, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होता है, लोगों ने बहुत झेले हैं। लेकिन जैसे मैंने योगा को तब से अपनाया, और हाँ ये मेरा सर्जरी के बाद ना, जैसे मेरा बोन का प्रॉब्लम आया था, ऑस्टियोपोरोसिस का जो इनिशियल स्टेज होता है, ऑस्टियोपेनिया, वो मेरा बीएमआई हाई था और वो भी मेरे को दिखाया था। लेकिन विद इन 1 मंथ मेरा सब कुछ, मैंने उसके ऊपर मैंने योगा स्टार्ट किया। लेकिन तब मैं योगा सिर्फ वेट लॉस के लिए करती थी, और योगा करके अभी तक देखो लास्ट 17 इयर्स हो गया है, मैं अभी एकदम हेल्दी हूँ, आपके सामने हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे होंगे। तो इसीलिए योगा जो है ना, आपको हर तरह से आपको फिट रखता है। कभी भी कोई भी चीज हो, पीसीओएस या पीसीओडी को छोड़ के भी कोई भी हेल्थ आपके पास हेल्थ इशू है, वो आपको हमेशा हर जगह मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा फिट करता है। तो ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और तो इसीलिए बिल्कुल ये जो पीसीओएस, अगर पीसीओडी और अदर कोई भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके पास है, तो आप बिल्कुल ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये पीसीओएस पीसीओडी का मेन चीज वही है, आप एक सिंपल एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करो एंड लाइफस्टाइल चेंज करो। ये 3 को आपको फॉलो करना है। अगर कोई किसी को पीसीओएस और पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये एकदम लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा निर्भर करता है आपका। और थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो और आप बहुत अच्छे से आपका पूरा लाइफ पीसीओएस पीसीओडी के साथ आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। पीसीओएस और पीसीओडी को जड़ से तो हम खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन एंड कुछ मेडिसिन के हेल्प से इस लक्षण को मैनेज या कंट्रोल हम कर सकते हैं। मैनेज या कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। अभी आ गया जो हमारा लाइफस्टाइल। योगिक प्रिंसिपल क्या कहता है एक हेल्दी लिविंग के लिए। अभी हम लोग जो पीसीओएस पीसीओडी के लिए जाने,
तो मेन चीज इसका क्या है, हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल का 4 पिलर, आपका जो गुड हेल्थ के लिए 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ क्या है, देखो यहाँ पे है आहार, विहार, आचार, विचार। ये 4 जो है ना, ये 4 पिलर्स है आपका अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। आहार जो है, डाइट, diet is one of the supporting pillar of the body. Diet is the main factor to achieve good health. ये सबको ही जानता है। खाली एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से डाइट लेना पड़ेगा। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, जैसा अन्न वैसा मन। We are what we eat. हम जैसे खाते हैं तो हमारे वही दिखता है। तो इसीलिए यौगिक डाइट मतलब सात्विक आहार। तो हमारे जैसे योगा ग्रंथ में लिखा गया है, हठ योग प्रतिपिका में बताया है हम लोग को किस फूड कैसे खाना चाहिए। मैं आपको वो बताती हूँ किस टाइप का फूड हमको लेना चाहिए। चुस्निग्धम मधुर आहार चतुर्थ अंश विवर्जित भुज्यते शिव संपृत्य मिताहार च उच्यते। तो आपको जो खाना लेना है, आपको फ्रेश खाना लेना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। जो फूड 2-3 घंटा पहले ही, अभी 1-2 घंटे के पहले ही बना है, आप उसी को लो। सात्विक फूड लो जो कि लेस स्पाइसी होता है, आपको इजीली डाइजेस्ट होता है। एंड हमेशा ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका स्टमक को हमेशा 3/4 पार्ट को फिल अप करना है। आप कोई भी फूड, आप जब भी आप खाना खाने जाते हो तो ईश्वर को अर्पण करो, देन आप अपना आहार ग्रहण करो। एंड डाइट का भी एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, हाँ, डाइट ना एक आपका इमोशन डाइट के साथ बहुत अटैच है। आपका वेट कैसे बढ़ता है या वेट कम होता है, क्यों होता है? अब जब आप कहीं आपका इमोशन, आप गुस्से में हो या आप कभी दुखी हो, तो उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए आपको। क्योंकि आप आइदर उस टाइम अगर खाना खाते हो, आइदर आप ज्यादा लेते हो, नहीं तो कम लेते हो। और खाने के समय में क्या करना है, खाने के समय या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है ना, आपका जठराग्नि है, वो बुझ जाता है। तो इसीलिए खाना खाने के समय या तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। एंड आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना है। आपको आज 1 बजे लंच किया तो कल दूसरे दिन आप 3 बजे लंच करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका जो वेट मैनेजमेंट में, ये आपका एक वो आपका वेट जो बढ़ता है ना, ये सब गलत प्रोसेस से आप खाना खाते हो, इसके चलते ये होता है। ठीक है, तो और अच्छे से हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में भी बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। और विहार जो है वो है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन चाहिए हमारी जिंदगी में हमको। हम एक काम में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो या 45 मिनट्स आपने एक्सरसाइज किया, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन उससे जाता है। या पढ़ाई किया आधा घंटा, यहाँ से आप बुक बाकी आप 2 घंटा भी आप उधर बैठोगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको इसीलिए आपका जो भी हॉबी है आप उसको करो। आपको अच्छा लगता है बीच में घूमना, आप उसमें जा सकते हो। ट्रेकिंग में जाना चाहिए, आपको पसंद है, आप वो भी कर सकते हो। तो आपका जो रिक्रिएशन भी चाहिए। और आचार मीन्स रूटीन, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। ये 2 चीज जो है मेजर कंपोनेंट है एक आपका रूटीन को अच्छा करने के लिए। अगर आप ये रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी से हर काम करते हो ना, आपका देखो लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगा। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। द सन इट राइजेस एंड सेट्स डेली विदाउट एनी एक्सक्यूज। वो अपना काम करता रहता है, वो नहीं देखता है आज ठंड है, आज मैं नहीं आऊंगा, मैं आज सर्दी है, आज बारिश है, लेकिन वो अपना काम करते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, आज बहुत सर्दी है, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यही सब है। तो एक आपका अच्छा रूटीन बनाना चाहिए। और विचार जो है थॉट प्रोसेस, एवरी थॉट हैज इफेक्ट ऑन द बॉडी। राइट थॉट विल प्रोड्यूस द राइट इफेक्ट। सिमिलरली अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स लाते हो
तो आपके दिमाग में वो भी नेगेटिविटी रहता है। तो हमेशा आप कोशिश करो, कोई भी नेगेटिविटी आता है ना, नेगेटिव थॉट आता है, उसको इमीडिएटली कैसे हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देती हूँ। अगर आप कोई सामने से आके आपको गाली देके चला गया, वो तो चला गया, लेकिन दुखी हो गए आप, दिन भर आप सोचते रहे, तो क्या हुआ? आपका पूरा दिन भर गया। अगर उसी टाइम अगर आप ये ना सोच के ये क्यों मुझे गाली दिया, ये सोचते कि ये मुझे गाली देके अगर वो खुशी हो रहा है तो उसको खुशी होने दो ना, लेट गो, बस हो गया ना। तो आप फिर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, आप एकदम फ्री हो जाओगे। तो इसलिए थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योगा। योगा मैम हमारा मैम आप विहार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लाइक दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या एंड आहार विधि। यस, हाँ हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, योगा हमको कैसे पीसीओएस एंड पीसीओडी में हेल्प करता है। मैं मेरा अभी तक जितना मैं बताई हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, एंड आप ये मेरे स्लाइड में भी देख सकते हो। तो योगा हमारे ये जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, पेन, ये सबको हमारा उसमें से वो रिलीफ देता है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो इसीलिए आप योगा को अपनाओ। एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन मेंटल स्ट्रेस को कैसे रिलीव करता है, सबको पता है। तो योगा सिर्फ हमारा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये जो 4 दिन का आगे हम लोग करेंगे ना क्लासेस, उसमें हम लोग सीखेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, स्थूल व्यायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, योगासन करेंगे, तटक्रियास, प्राणायाम, बंधस, मुद्रास, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, ये सब हम सीखेंगे। वेट मैनेजमेंट को हम लोग साथ में रख के जाएंगे आगे आगे। हाँ, तो सूक्ष्म व्यायाम, सटल एक्सरसाइज, हमारे शरीर के जो छोटे छोटे स्मॉल सटल जॉइंट्स रहता है उसका एक्सरसाइजेस होता है। क्योंकि देखो ये पीसीओएस पीसीओडी में किसी किसी का क्या होता है ना, वाटर रिटेंशन भी होता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए तो वाटर रिटेंशन ना हो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग देखो ये सब करेंगे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम होता है ना, हेड से लेके टो तक सारे स्मॉल स्मॉल जॉइंट का हम लोग का एक्सरसाइज होता है। उसके बाद हम लोग स्थूल व्यायाम करेंगे। स्थूल व्यायाम में हम लोग क्लास में 2 विजगति और सर्वांग पुष्टि करेंगे। ये भी क्या करता है, देखो हमारे बॉडी को टायर्डनेस दूर करता है, लेथार्जी नेस को हमारा कंट्रोल करता है, बॉडी को आसन के लिए तैयार करता है। ये है विजगति, देन सर्वांग पुष्टि। सूर्य नमस्कार करेंगे। सब लोग को पता है सूर्य नमस्कार कितना हमको बेनिफिट देता है। तो हमको जैसे ये हमारा पीसीओएस पीसीओडी है, हमारा लाइफस्टाइल एंड वेट मैनेजमेंट के साथ करेंगे। तो ये तो हमको जरूर करना चाहिए। देखो हेल्प टू लूज वेट, फिजिकल बेनिफिट में इसमें आता है सूर्य नमस्कार का। और स्ट्रेस फ्री करना है, ये इसमें भी हमको मेंटल बेनिफिट भी देता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी आता है। तो देखो बहुत सारे आसन हम लोग ये पूरे सेशन में हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टैंडिंग आसन है, सीटिंग आसन है, सुपाइन पोस्चर है एंड प्रोन पोस्चर है। ये सब हम लोग आसन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ आसन का मैंने इधर फोटो दिए हूँ, सब जो हमको बेनिफिट देगा इसमें वो भी करेंगे। सिर्फ ओनली पीसीओएस पीसीओडी के लिए नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है ये सारे आसन। और ये जितना भी दिए हैं उसके छोड़ के भी हम कुछ कुछ और भी आसन भी कर सकते हैं, अगर टाइम परमिट करता है तो करेंगे। और शवासन, ये जो शवासन है ना, ये बहुत बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आसन है, रिलैक्सिंग आसन है। बहुत जल्दी आपका बॉडी शांत हो जाता है। लेकिन सब लोग बोलते हैं ये बहुत इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से वेरी डिफिकल्ट होता है शवासन। मतलब कुछ ना करना, ये होता है शवासन। तो ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है, ये भी हम लोग करेंगे। देन प्राणायाम में सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न सीखेंगे। एक एक सेक्शन का लेके कैसे ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग पैटर्न, प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न सीखेंगे। अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, सूदिंग प्राणायाम है।
ये सब करेंगे हम लोग। सटक्रियाज, सटक्रियाज में देखो सारे सटक्रियाज तो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट क्या देता है, हमारे इंटरनल बॉडी को वो क्लींजिंग करता है, श्री दोष वात पित्त कफ को वो बैलेंस करता है। तो इसीलिए सारे सटक्रियाज बहुत वेरी हेल्पफुल है। बट हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति एंड अग्निसार। बंधस में मूलाबंध करेंगे, कपालभाति करेंगे। देखो वेट लॉस के लिए, क्योंकि हमारा फोकस उसी के ऊपर रहेगा, वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल चेंज। और हस्त मुद्रा, कुछ कुछ हस्त मुद्रा हम लोग क्लास में प्राणायाम के टाइम हम लोग सीखेंगे। उसके साथ पीसीओडी में कौन सा मुद्रा हमको हेल्प करेगा उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। देन काय मुद्रा जो होता है हमारा, इसमें योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, ये भी सीखेंगे। और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये तो बहुत देखो लो स्ट्रेस कैसे कम करता है, एंजाइटी कम करता है, इंसोम्निया में भी बहुत इंप्रूव आता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को रिड्यूस करता है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन का। और हम लोग इस क्लास में देखो 4 दिन हमको टाइम मिलेगा, हम कुछ कुछ अलग अलग इसमें से रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। ओमकार चैंटिंग, गायत्री मंत्र चैंटिंग, ध्येय धारणा, प्राण धारणा, विपासना, बहुत सारे मेडिटेशन है। ओके, अभी आया लाइफस्टाइल पर पीसीओएस एंड पीसीओडी। ये तो कुछ कुछ मैंने बताया योगा के हिसाब से लाइफस्टाइल यौगिक प्रिंसिपल कैसा था। सिर्फ योगा ग्रंथ में नहीं है, आप लोग अब देखे होंगे ना, हमारा जैसे गीता में भगवान हमारे श्री कृष्ण ने भी बताया है, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा। योगा becomes the destroyer of pain for them who are moderate in eating and recreation, who are moderate in exertion in action, who are moderate in sleep and wakefulness। ठीक है, तो हमको जो भी खाना है, जो भी हम लोग फूड लेंगे मॉडरेटली लेंगे, रिक्रिएशन जरूरी है। और जो एक्सर्शन इन एक्शन, हम लोग काम करते हैं लेकिन सबका एक लिमिट होता है। आप सबका एक रूटीन रखो। जब मन किया आप सुबह आ गए, रात को 8 बजे डिनर किया, रात कभी 8 बजे डिनर करते हो, कभी आ गए ऑफिस से 8 बजे आए, 10 बजे डिनर किया, रात को 2 बजे सो गए, सुबह 10 बजे उठा, सीधा बिना कुछ एक्सरसाइज किए ऑफिस चले गए, और वहां पे जाके घंटों तक आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना। लाइफस्टाइल सबका हो जाता है गड़बड़ उसमें। तो ये सबको आपको ध्यान में रख के करना है। सबसे बड़ी चीज है इसमें भी, गीता में भी बताया गया है, मॉडरेट इन स्लीप, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड, एक्सरसाइज एंड स्लीप। अगर ये 3 आपका सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ जाएगा। उसके साथ साथ एक बार लाइफस्टाइल बिगड़ गया ना, खाली पीसीओएस पीसीओडी नहीं, आपको हर तरह का डिजीज आपके अंदर आ जाएगा। तो जो भी डिजीज है, जो भी आपका बॉडी को एकदम निरोगी रखना है, तो आपका लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एकदम लाइफस्टाइल को, जैसे मैंने सन का एग्जांपल दिया, आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आयुर्वेद में बिलीव करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में सज्जा त्याग करते हैं हम लोग। सन जैसे सनराइज होता है, पहले क्या था, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता था, उसके साथ साथ हमको अपना रूटीन फॉलो करना है। सुबह हम लोग उठ जाते हैं, सुबह 6 से 10 बजे तक हमारे बॉडी में क्या होता है ना, कफ ज्यादा रहता है शरीर में, तो हमको एक्सरसाइज करना, अपना प्राणायाम, योगा, ये सब करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से सुबह का समय क्यों दिया बताया गया, इसीलिए। लेकिन आजकल क्या ना, सबको अपना अपना जॉब रहता है, काम रहता है, अदर मैंने इन्वॉल्व अदर काम में रहते हैं, तो इसीलिए आप इवनिंग को भी करते हो। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह से 6 से 10 बजे तक हो गया, आपको ब्रेकफास्ट उसी के अंदर ले लेना है, आपको नहा धो के आपका रूटीन सुबह का काम वो वाला कर लेना है सुबह 6 से 10 बजे तक। उसके बाद 10 से 1 बजे तक जो होता है ना, पित्त जो होता है,
पित्त का डोमिनेंस रहता है उस टाइम, तो आपको उसी टाइम 12 से 1 के अंदर आपको लंच कर लेना चाहिए। अगर लंच उसी टाइम, क्या होता है, हमारा डाइजेशन पावर सबसे ऊपर रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो पाता है हमारा डिनर। और जैसे सनसेट होता है ना, आप लोग देखे होंगे कोई कोई धर्म के लोग क्या होता है ना, सनसेट के बाद डिनर नहीं लेते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग इंडियन अपने स्टाइल से ले सकते हो सनसेट। ज्यादा से ज्यादा सनसेट का 2 घंटे के अंदर, अगर 6 बजे सनसेट होता है, 2 बजे तक 8 बजे तक आप डिनर कर ले। तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ हमारा दिनचर्या। उसको आप उसी हिसाब से, कौन सा टाइम आपको प्रेयर करना है, इवनिंग अगर डिनर कर लिया, बहुत जल्दी डिनर कर लिया, उसके बाद का टाइम होता है आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो। आपका जो गैजेट्स है उसको आप अलग रखो, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, आप उसको अलग रखो। कुछ अच्छा अच्छा बुक पढ़ाई करो, जो जो हॉबी है आपको, आप उसको फॉलो करो। तो आपका दिनचर्या सही रहना चाहिए, तो तभी जाके आपका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं ना अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। हमको थोड़ा सा आपको मैं टिप्स देती हूँ, हमको क्या क्या वो पीसीओएस पीसीओडी में आपका फूड कैसा रहना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा है, सात्विक फूड तो लेना चाहिए, तो मैं और थोड़ा आपको बता देती हूँ। अवॉइड ऑयली फूड, जो ज्यादा फैट होता है नहीं लेना चाहिए वो वाला फूड। एंड डायरेक्ट शुगर मत लीजिए, आपका जो नेचुरल शुगर आता है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब में, आप खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी आपको खा सकते हो। ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, एंड आपके डाइट में ना आप फाइबर ऐड करो। जंक फूड को एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि जितना सारा प्रिजर्वेटिव फूड होता है, एडेड फूड होता है, उसको पूरा अवॉइड करना है। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना है, तो रेगुलरली प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये सब करना है। योगा करने से क्या होता है, हार्मोनल लेवल आपका बैलेंस होता है। योगा करके आपका हार्मोनल बैलेंस लेवल को भी बैलेंस किया जा सकता है, इसीलिए डेली योगा करिए। और एक चीज है, आपको हाइड्रेट रहना है, अच्छे से पानी पियो। और लास्ट पॉइंट है जो स्लीप, एडिक्वेट स्लीप लेना है। जब आप एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसमें ना आपको ज्यादा चाहिए, पीसीओडी में एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना चाहिए, ज्यादा हमको एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना है, बेली फैट कम करना है, क्योंकि वहीं पे फैट जमता है, फैट इकट्ठा होता है उधर ही। और तो इसीलिए ये सब एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, एंड आपको एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए। ठीक है, ये जो भी जितना भी था मैंने आप लोगों को समझाया, थोड़ा थोड़ा जो भी हो, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। कल से हम लोग योगासन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं गाइडलाइंस बता देती हूँ। योगा के करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कल जब आप आओगे तो 2 घंटा पहले आपको जो भी खाना होगा वो ले लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक रखना चाहिए, एक कंफर्टेबल लूज क्लोथ पहनना है, एंड मैट के ऊपर करना है एक्सरसाइज। एंड हमेशा एक क्लीन एनवायरनमेंट में आपको करना चाहिए। बट हम लोग घर में कर रही है आजकल, ऑनलाइन क्लास है, तो ठीक है, आपके स्पेस जहाँ पे है आप कंफर्टेबली कर सकते हो, वहीं पे रहना है, वहीं पे करना है। और आप जब योगा करोगे, अपना बॉडी को सुनना है, यथाशक्ति करो, किसी और को देख के नहीं करना है, आप अपने बॉडी को सुनो। आप खुद ही अपने बॉडी को अच्छे से पहचानते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता है, तो इसलिए अपना बॉडी को सुनो। और हमेशा नस्ट्रिल से ही आप ब्रीथ करो, जब तक आपको नहीं कहा गया है कुछ अदर मुंह से लेना या अदर कुछ ब्रीदिंग पैटर्न में नहीं बताया गया, आपको हमेशा नस्ट्रिल से ब्रीदिंग लेना है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। अगर ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग आचार विचार, आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार में थोड़ा थोड़ा आप लोग चेंजेस करोगे तो बहुत सुखी निरोगी लाइफ आप अपना स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शांति पाठ करते हैं। जो भी पोजीशन में जहां पे भी आप लोग बैठे हो, कोई भी एक मेडिटेटिव पोज जो आपको पता है, एनी कंफर्टेबल पोज में भी आप बैठ सकते हो, क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हो। रिलैक्स योर शोल्डर, दोनों हाथ को, अगर कोई भी मुद्रा आपको पता है आप वो मुद्रा लेके थाई के ऊपर रख सकते हो। आईज
closed. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. The Omkar chanting. Inhale and start. Inhale. Inhale. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब शांत सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, कोई कभी किसी को कोई दुख का भागीदार ना बने। अंदर शांति, बाहर शांति, चारों ओर शांति, शांति शांति शांति। Rub your palms, cup your eyes, remove your hand, slowly and gently open your eyes. Thank you everyone. थैंक यू अगर अगर अभी मैम किसी को मैम हाँ जी मैम एक क्वेश्चन है मुझे। स्मिता जी आप स्क्रीन पूरा ये हाँ करेंगे हाँ क्या? मैं कर लेती हूँ करती हूँ क्या क्या आ रहा है अभी। मैं स्टॉप शेयर कर देती हूँ। यस मैम एक क्वेश्चन है। हाँ कांचन जी। मैम जो पीरियड्स होता है, जब पीरियड्स होता है तो जैसे कि मुझे मेरा एग्जांपल देती हूँ। लाइक पहले मुझे इतना पेनफुल नहीं होता था, फर्स्ट डे थोड़ा बहुत हुआ वो मैनेजेबल होता था, और मुझे पीरियड्स में ना 2 डेज तक बहुत लूज मोशंस होते हैं। हम्म। ठीक है, इस बार ऐसा पहली बार हुआ था दिसंबर में, मुझे पीरियड्स का जो पेन हुआ उसमें लूज मोशन हुआ, मेरा बीपी लो हो गया, इवन मैं फेंट हो गई। ये लाइफ में ये एज पे मुझे पहली बार हुआ, और जिससे अभी आज भी मुझे पीरियड्स हुआ है, तो आज भी मुझे बहुत पेन हो रहा है। मतलब इतने इस स्टेज पे भी आके ना मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ना दिसंबर में, जनवरी में एक एक बार मेडिसिन खाई पेन के लिए। तो और ये लूज मोशन क्यों होता है मैम वो मुझे भी नहीं पता। तो लाइक मैं जो पेनफुल होता है ये एक्सपीरियंस लाइक चाइल्डहुड से लेके अभी तक हुआ नहीं था, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम मुझे? कांचन जी मैं आपको ये बताऊंगी। एक तो फास्ट फास्ट पॉइंट में ये बोलूंगी, हम तो डॉक्टर नहीं है तो हम तो डॉक्टर नहीं है, तो इसीलिए अगर ऐसा अभी बहुत बड़ा इरेगुलर कुछ आपका ऐसे हुआ है तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप भी करवा लो। तो जैसे हम लोगों को कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, हमको कैसे पता चलता है? हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और एक हमारा जो पेल्विक, हमारा जो एब्डोमेन का एक हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे ही पता चलता है क्या है हमारा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम लोग ये बता सकते हैं आपको पीरियड्स में जो सब प्रॉब्लम आ रही है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली, अभी पीरियड्स अगर सीवियर है तो उस टाइम आप कर नहीं पाओगे कोई कोई आसन, लेकिन ऐसा भी कोई कोई आसन है तो आप पीरियड्स में एकदम रिलैक्सेशन में आप वो वाला आसन रिलैक्सिंग पोजीशन में करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने प्रॉप के हेल्प से कोई भी सपोर्ट लेके आप एकदम मैंने एक एक आसन में आप बहुत समय तक आप बैठ सकते हो।
तो ये करना चाहिए। और कुछ जो आसन है, जब पीरियड आपका पेनफुल टाइम खत्म हो जाता है 2 दिन 3 दिन के बाद, आप कंटिन्यू करो ये सब जो आसन है, तो देखोगे आपको आज नहीं तो कल थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस की हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मेरा अभी 17 ईयर्स हो गया मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं है। बट बहुत मैंने यूटेरस तो बहुत लोगों का नहीं होता है, बट मेरे पास अभी दोनों ओवरीज भी नहीं है जो हार्मोन सिक्रेशन करता है वुमेन के लिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक चूज किया। मैं आपको बता सकती हूँ क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए आप योगा करो, आप बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो करते रहो, योगा करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। ये जो हमारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, पूरा लाइफस्टाइल, आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, एक रूटीन में आना पड़ेगा, हर चीज, डाइट एंड ये। और आप एक्चुअली में क्या है ना मैम, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सब निकलवा ले, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी रिसेंटली दिसंबर में भी मैंने सब कुछ कराया, सोनोग्राफी कराया, इंटरनल सोनोग्राफी कराया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है उसमें। इंटरनल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कंसीव करना है तो उसके लिए भी कर सकती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट ये पेनफुल बहुत हो रहा है मैम, ये मोशंस क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे लगा कुछ थोड़ा गाइड कर सकते हैं आप तो इसीलिए। ये अगर फर्स्ट टाइम हुआ है ना आपको, कभी नहीं होता था, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है, 1-2 मंथ आप देखो ये रेगुलर उसी टाइम हो रहा है कि नहीं। अगर हो सकता है उसका 1-2 दिन पहले आपका कुछ डाइजेशन, खाने पीने में कुछ ये हुआ होगा, इरेगुलरिटी कुछ हुआ होगा। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व, कोई भी चीज हम लोग अचानक एक ही दिन कुछ इरेगुलर होता है उसके ऊपर हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा उसको ऑब्जर्व करेंगे वो किस लिए हो रहा है। तो ये थोड़ा देखेंगे आप अभी हुआ है ना, अभी आगे देखो क्या हो रहा है। तो जी फिर अगर ये कंटिन्यू करता है तो नहीं, ये हमेशा लूज मोशंस मुझे ना मैम, ये 1 साल हो गया मुझे कि लाइक लूज मोशंस होता ही है पीरियड्स में, बट पेनफुल ये 3 महीने से हो रहा है बस। ओके। जी तो अगर कुछ नहीं है, आप ना एक काम करो, पूरा ये करो, एक्सरसाइज करो, वो कम हो जाएगा। जी एक्सरसाइज करो, कम हो जाएगा, वो पेन कम हो जाएगा। जी और ठीक ये है। लूज मोशन ये किसी किसी का बॉडी के हिसाब से कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी आप एक्सरसाइज करो, आप देखोगे 2-3 महीने में ये ठीक हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, वो कभी गायब हो सकता है, लेकिन जी करना चाहिए। जी श्योर। Yeah, okay. Before leaving everyone, please feedback form भरिए। और कल चैट सब बॉक्स में कल जो से है हम लोग उसमें योगा लिंक करेंगे, है। एक्सरसाइज करेंगे कल से। मैम यू विल गाइड अस विद द एक्सरसाइजेस जो हम पीरियड्स के वक्त भी कर सकते हैं। यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ना, पीरियड के टाइम जो जो करोगे, हमारा अभी जो पीसीओएस पीसीओडी का मेन फोकस क्या है, लाइफस्टाइल, हम लोग कैसे लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हमारा इसका ये है, हमारा वेट लॉस और हमारा पेल्विक मसल को हम लोग को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और हाँ, ये बीच बीच में मैं बताऊंगी आपको, अभी पीरियड कंटिन्यू कर रही है तो कौन सा आसन आप कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। कोई भी इन्वर्टेड आसन आपको करना नहीं है। मेरा ये मेनोपॉज का वो चल रहा है, लाइक आई एम 50+, सो व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक, ऐसा होता है, मैं वही मेरे को उनको बहुत बताया। हाँ, सॉरी। ये नीलू जी बता रही थी ये जो लूज मोशन का, तो उन्होंने मैसेज डाला। तो ये कभी कभी क्लाइमेट चेंज, अदर कुछ भी एनवायरमेंटल आजकल, तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है सबका लाइफ को, लाइफस्टाइल को। तो टेम्पररी भी हो सकता है। आप कंचन जी, आप थोड़ा सा उसको मॉनिटर करो। एंड पेन होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, क्रैम्प्स आता है 2-3 दिन, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, लाइक मेरा मेनोपॉज का वो चल रहा है, तो लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days आई हैव वेरी हेवी ब्लीडिंग, सो इट आई डोंट लाइक टू मूव माई बॉडी। तो लाइक ज्यादा मूवमेंट, तो इट इज ओके इफ आई अवॉइड डूइंग योगा, like नहीं, it is not at all convenient for me to perform the exercise, like I can sit आपको in one जब pose and do something, but ज़्यादा movement देखिए, योगा में देखो, अब आप अभी करोगे, हमारा ये सेशन में भी आप देखोगे, ये जैसे ये जो फर्स्ट वीक हमारा वोमेन हेल्थ के ऊपर चल रहा है, हमारा आरंभ योगा से। आज मॉर्निंग एक क्लास था, मॉर्निंग 7 to 8 हो रहा है। ये वीक चल रहा है, ये मेनोपॉज के ऊपर है, मेनोपॉज का क्लास, वो वाला सेशन चल रहा है। आप मेनोपॉज में ना, मेनोपॉज का अभी वही फेज में आप हो,
आप ना जो आसन, ऐसा नहीं आप इन्वर्टेड आसन करो, ये आसन करो, वो सब कुछ नहीं करना है आपको। जितना रिलैक्सिंग आसन आप करोगे, मेंटल स्ट्रेस ये सब कम होगा। तो इसीलिए जो जो आसन आप कर सकते हो, आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, हेड से लेके टो तक। ये भी आसन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग अलग अलग अजीब अजीब पोस्टर कर ले तो हमारा आसन हुआ, ये नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, वो वेरी 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 हेल्पफुल। तो आप ये भी कर सकते हो। एंड रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम, आप प्राणायाम भी कर सकते हो। जो जो प्राणायाम आपका जो अनुलोम विलोम हुआ, आपको फिर अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। बड़ा बड़ा बहुत क्रिटिकल एक्सरसाइज ये वाला मत करो। कपाल भाती नहीं कर सकते ना मैम? कपाल नहीं, भाती नहीं कपाल कर भाती सकते? मत करो, कपाल भाती मत करो। हमारा जी। हाँ, कपाल भाती मत करो। अगर पीरियड्स में हो, अगर आपको पीरियड अभी चल रहा है, आप मत करो। यू विल गाइड ना मैम टुमारो कि कौन सा आसन करना है पीरियड्स में अगर हम लोग है यस, तो, क्योंकि हाँ आज फर्स्ट डे इसीलिए पीरियड्स हाँ, का। यस यस यस, हम बताएंगे। तो मैं बताऊंगी जिन लोगों का पीरियड थे, आप ये आसन नहीं करना, वो आसन नहीं करना, मैं इसे बताती जाऊंगी। अगर किसी का होता है तो कोई कोई प्रॉप लेके आप ये कर सकते हो, तो कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू। और कोई ना वाइंड अप करे अभी? Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Smita ji, and thank you everyone. Thank you, everyone. Bye bye. कल मिलते हैं सब लोग। बाय। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। वंदना जी, मैं लीव करूँ? Yes, yes, even maybe. हाँ, आप ये कर दो। अच्छा, अभी मैं हूँ ना होस्ट? ओके You have to. ओके, सी यू टुमारो। Bye. कल मिलते हैं, बाय। Thank you.